Hello, good evening, my dear students. Here is Saroj sir in front of you. Today we will discuss about lesson number 2, the cultural heritage of India. The name of the lesson is Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts. Before beginning, we will see there are heritage, cultural heritage. Heritage मतलब विरासत that we are getting from our predecessors, our ancestors. We are getting whatever we are getting from our ancestor is called as heritage. बराबर. अभी हम हेरिटेज बात करेंगे. हेरिटेज इसमें हम बात करेंगे कि जेनेटिक इनहेरिटेंस, मटेरियलिस्टिक इनहेरिटेंस एंड कल्चरल इनहेरिटेंस. जेनेटिक इनहेरिटेंस means the physical characteristic that we are obtaining from our forefathers, from our grandparents or parent, that is called as genetic inheritance. Every child, they are getting their body part, color complexion, facial appearance and stoutness of the body, height, breadth, whatever, all this and imagination, everything we are getting, almost all parts of the body part and mental things, mental thoughts from our forefathers, बराबर, और from our parents, जिसको हम बोलते हैं हम अपने forefather से, हम अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों से उनका जो शारीरिक गठन है, उनका जो appearance है, we are getting all those things from them. We are looking like our grandparents. ऐसे scientifically it has been proved that we are getting the genetic inheritance since 7th generation. हमारा 7 पीढ़ी का भी बड़ी पार्ट हमारे पास ट्रांसप्लांट हो सकता आ सकता है, बराबर. क्योंकि एक पीढ़ी का जो दूसरा पीढ़ी होता, तीसरा पीढ़ी होता, दे आर इनहेरिटिंग द बॉडी पार्ट्स एंड द क्वालिटी, द कलर कॉम्प्लेक्शन, हाइट, ब्रेड्थ, बराबर, ऑफ द बॉडी पार्ट, ऑल द बॉडी पार्ट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर फोरफादर्स, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस. मोस्ट प्रोबेबली फीमेल चिल्ड्रेन दे आर लुकिंग लाइक देयर फादर एंड मेल चिल्ड्रेन दे आर लुकिंग लाइक देयर मदर्स. इन मैक्सिमम केस वी हैव ऑब्जर्व्ड दिस फेनोमेना. नेक्स्ट कम मटेरियलिस्टिक हेरिटेज. हमारे पेरेंट्स जब मर जाते हैं या दादा दादी मर जाते हैं, उनका जो बैंक बैलेंस, लैंडेड प्रॉपर्टी, हाउस, व्हीकल्स, gold, diamond, whatever in the asset of materialistic form, we become the owner of all these things, right? तो materialistic का मतलब जो पदार्थ, जो वस्तु हमारा forefathers का, जमीन हो, मकान हो, फ्लैट हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, गोल्ड हो, डायमंड हो, we are inheriting it. That is called as materialistic inheritance. Then what is cultural inheritance? Cultural inheritance means wisdom, skill, knowledge, art, architecture, sculpture, science, technology, law and order, administration, irrigation, trade and commerce, export, import, constructive qualities, बराबर, literature, paintings, all these things we are getting from our forefathers. That is called as culture. तो कल्चर किसी एक जनरेशन का देन नहीं होता है. कल्चर जो है वी आर कलेक्टिंग इट फ्रॉम सो मेनी जनरेशन्स. अभी मैंने कुछ किया, उसको मेरे नेक्स्ट जनरेशन और सुपीरियर करेंगे. जब पहले बार एरोप्लेन बना हुआ था और आज की एरोप्लेन, अब देखो, पहले बार जब एरोप्लेन बना हुआ था उतना सुपीरियर नहीं था, लेकिन आज टुडे इन द मॉडर्न वर्ल्ड वी आर ऑब्जर्विंग कि एरोप्लेन किस तरह है, कितने फैसिलिटी है, और इन दीज आर यूज्ड इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. एरोप्लेन्स आर यूज्ड इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, बराबर. सो साइंस और टेक्नोलॉजी जब इन्वेंशन हुआ, day to day we are going to make it productive. We are taking unlimited advantage out of this. So all these are included with cultural heritage. Any kind of research, science, technology, art, architecture, literature, all these things are belonging to cultural inheritance, right? Next we will see cultural heritage के बाद art of Indian artisans. Okay,
मोस्ट प्रोबेबली वी विल सी कल्चरल हेरिटेज में हमारा क्या क्या है. देर आर रेफरेंस ऑफ 64 आर्ट्स in our ancient literature. They are handicraft, workmanship, kasab, art, drawing, music, dramatic art and dance. बराबर. 21st June is also considered as the World Yoga Day. 21 जून को वर्ल्ड योगा डे के हिसाब से माना जाता है. दिस इज ऑल्सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर फोरफादर्स. द वेदास, द उपनिषद, द बृहदारण्य, द छांदोग्य, all these are the most important books that taught us custom, tradition, rituals, sanskars, lifestyle, living standard, how to live our life. Human being is something different than that of other creatures. So human being is the most clever creature in God's creation. So man must possess human sense and man is possessing culture, right? So God has created the best. The man, human being is the best product of God's creation, because man is on the way of extreme progress level in the world. No other living being can compete to human beings. आदमी के साथ किसी भी प्रकार का लिविंग स्पेसीज compete नहीं कर सकता है, क्योंकि आदमी के अंदर इतना कंप्यूटर नॉलेज दिया भगवान ने. आदमी का दिमाग को इस तरह बनाया कि मैन इज सुपीरियर अमंग ऑल दी लिविंग क्रिएचर्स. सो वी पोजेज कल्चर, हेरिटेज, literature, imagination, philosophy. बराबर. We are living in a disciplined manner. We have government, law and order system, administration. So it is a disciplined way of life that other living species don't have as we possess. Next come art of Indian artisan. The beauty of Indian culture heritage is lying in the traditional art of its artisan. They have skillfully developed varied lifestyle of people through their remarkable art and handicraft industry. Weaving and embroidery, wooden art, inlay work, drawing, painting, leather industry, enamel work, sculpture, architecture, acrylic work, diamond, ये सब विभिन्न प्रकार का हमारा in different subject we have progressed, right? And these are the constant and continuous progress of man and contribution of man for the mankind. Okay. नेक्स्ट वी विल सी क्ले वर्क, मिट्टी का काम. मैन एंड क्ले आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर स्टार्टिंग फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेवयार्ड. ऑल ऑफ आवर एक्टिविटीज आर रिलेटेड विथ क्ले. आदमी, हम लोग जो जन्म होने के बाद मिट्टी के अलावा हम जिंदगी जी नहीं सकते. बराबर. विदाउट सॉइल वी कैनॉट एक्सपेक्ट आवर लाइफ, क्योंकि हम मिट्टी ज़मीन में हम एग्जिस्ट करते कहाँ पर? ज़मीन पर. वी मेक आवर हाउस, वी मेक रोड, रेलवे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑल दिस थिंग्स. इसीलिए ये कहा गया है मैन एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एंशिएंट टाइम. द होल लाइफ ऑफ मैन रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेवयार्ड. क्रेडल क्या होता है? जहाँ पर हम पैदा होते हैं. ग्रेवयार्ड हम मरने के बाद हमको जहाँ पर जलाया जाता है, दैट इज नोन एज ग्रेवयार्ड. जन्म स्थान को बोलते क्रेडल. जब बच्चा पैदा होता है, आजकल बच्चे लोग ज़्यादातर हॉस्पिटल में पैदा होते, लेकिन पुराना ज़माने में बच्चा पैदा होने के बाद उसको मिट्टी का बर्तन में लकड़े का आग का यूज किया जाता था और बच्चा को ऑयल मालिश करके तेल, सरसों का तेल, उसको आग में सेका जाता था. बराबर. इसीलिए क्रेडल मतलब जन्म स्थान एंड ग्रेवयार्ड मतलब जहाँ पर हमारा मौत होता और जहाँ पर हमको जलाया जाता है, राइट. सो मैन्स लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेवयार्ड, मैन इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ क्ले यानी मिट्टी. तो क्ले वेयर्स मैन हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एस्ट्रोलॉइड पीपल. दे हैव फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंटेड क्ले वेयर्स. बराबर. टॉयस, pots, pitcher, earthen lamp, clay stove, clayware were made by the potters to store grain, milk, ghee, curd, buttermilk, honey, rice, wheat, दाल. ये सब रखने के लिए पहले ज़माने में इतना बड़ा सब क्लेवर्स हुआ करता था घर में.
और वो उसमें सब दाल चावल तेल घी माखन बटर मिल्क दूध दही हनी all these things are stored in those clay wares, right? Except that we have got many clay utensils of the color that belong to Lothal, Mohenjo-daro, Harappan culture of ancient time. A potter's wheel is considered to be the best device of clay work in ancient India. हमारा Indus Valley civilization, we have discovered the cities of Harappa, Mohenjo-daro, धोलावीरा एंड लोथाल, कच्छ, भुज, अंजारे, ये सब जगह जब हम देखते हैं, जब भूकंप हुआ उसके अंदर से सब द ruined civilization, we got the remnants, historical remnants of the ruined civilization which were buried inside the earth some 5000 years ago. After 1921, after the earthquake, it came to our notice, we got to find that many clay utensils, dolls, idols, those came from interior of the earth to the outer layer of the earth, and we found it. बहुत सारे मिट्टी का बर्तन हड़प्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन से हम लोगों ने पाया कि हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन लोगों को भी मिट्टी का बर्तन बनाने का काम पता था, क्योंकि उनका जो भग्नावशेष, जो रेमनांट्स, जो हिस्टोरिकल रेमनांट्स, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के बाद वो सब चीज़ हमको देखने के लिए मिला, बराबर. सो इन प्रेजेंट टाइम वी आल्सो सी गरबा इन नवरात्रि. गरबा पॉट जो होता है, लेडीज़ लोग माथे पर पकड़ के आद्य शक्ति दुर्गा माता जो है, हम नवरात्रि में माता दुर्गा जी को पूजा करते हैं. दो लेडीज़ लोग, एज्ड लेडीज़, दे आर हैविंग द पॉट ऑन देयर हेड विथ ए टर्बन, बराबर, एंड दोज पिक्चर्स आर मेड ऑफ क्ले. वो मिट्टी का बर्तन लेडीज़ लोग सर पे पकड़ के वो क्या करते, चारों तरफ में घूमते हैं. इंडिया वाज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग बेक्ड यूटेंसिल एंड अनबेक्ड यूटेंसिल्स. बेक्ड का मतलब सेका हुआ, अनबेक्ड का मतलब बिना सेका हुआ. सो बेक्ड एंड अनबेक्ड क्लेस, बोथ ऑफ clay work were known to the people of India. Next come art of weaving. यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पिनिंग, वीविंग एंड निटिंग. ये तीन होता है. व्हाट डू मीन बाय स्पिनिंग, वीविंग एंड निटिंग, बराबर. ये है आर्ट ऑफ वीविंग, स्पिनिंग एंड निटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस स्पिनिंग. द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग थ्रेड और yarn by using the cotton balls is known as spinning. कॉटन बॉल जो किसान तोड़ के लाता खेती से, उससे जब धागा बनाने का प्रोसेस होता, हम उसको बोलेंगे स्पिनिंग. धागा बनने के बाद द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ बाय यूजिंग द थ्रेड और yarn इज नोन एज वीविंग. धागा से जब हम कपड़ा बुनते हैं संचा मशीन में, द प्रोसेस इज नोन एज वीविंग. कपड़ा होने के बाद कपड़ा को लेकर हम टेलर के पास जाते, टेलर उसको कटिंग करता और सिलाई करता. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज निटिंग. इन दिस वे स्पिनिंग, वीविंग एंड निटिंग, दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज थ्री. नेक्स्ट कम आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी. एम्ब्रॉयडरी वर्क वाज वेल डेवलप्ड इन इंडिया. अभी हम स्पिनिंग और वीविंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा. बांग्लादेश का ढाका में अभी भी वो काम है. एक माचिस बॉक्स के अंदर एक साड़ी रह जाता था. वो लोग इस तरह बनाते थे साड़ी को, ये जो रिंग होता है ना, रिंग, अंगूठी, ये अंगूठी का एक इधर से इधर तक आ जाए, इधर से इधर, एक साड़ी को हम आसान से निकल सकते. बांग्लादेश में मसलिन प्रिपेयर किया जाता था और जो साड़ी बनता था, वी कैन वियर द साड़ीज इन ईदर साइड, दोनों साइड में हम उसको, आजकल हम देखते हैं जैकेट, विंटर कोट हम दोनों साइड में पहनते हैं. जस्ट लाइक दैट those sarees prepared by them were worn by either side, both sides, right? And मैंने आपको क्या बोला, रिंग में साड़ी इधर से उधर चला जाएगा. माचिस बॉक्स, द होल साड़ी कुड बी एडजस्टेड विद इन द माचिस बॉक्स. तो कितना सूक्ष्म काम इन लोगों को पता था कि ये लोग एक साड़ी को एक माचिस बॉक्स के अंदर रख देते थे और एक अंगूठी का इधर से उधर साड़ी को क्रश करवा देते थे. दिस वाज द सिस्टम इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, राइट. उसके बाद देर आर थ्री फेमस
cities in India. Patola from Patan, most famous sarees, Patola, Kanjivaram and Bandhani. Patola was from Patan, Gujarat. During the time of Siddharth Jai Singh, some 850 years ago, the city of Patan in Gujarat was very famous. 850 साल पहले सोलंकी राजवंश का राजा सिद्धराज जय सिंह, he was ruling over Patan and he used to collect the most famous artisans from each and every corner of the world, and he settled down in Patan city and he gave them scope to find out and prepare most and beautiful articles. And India was well connected with other foreign countries and exporting different variety of textile product from India. So in India, Gujarat played the most important role in exporting sarees. यहाँ से साड़ी जाएगा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, इटाली, ग्रीस, ये सब का जो प्रिंसेस दे विल वियर द साड़ीज, दोज वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, दैट वाज यूज्ड बाय यूरोपियन प्रिंसेस. बराबर. सो बांधनी ऑफ जयपुर, पटोला ऑफ पाटन गुजरात एंड कांजीवरम कश्मीर and Sambalpuri from Odisha and Banarasi from Varanasi. These are the 4 most important sarees prepared in India which were exported from India to foreign countries. Right? Next come ikt. Ikt means weaving. ये एक important question है. What do you mean by ikt? एक मार्क में आएगा. Ikt means weaving. बराबर. यहाँ पर गुजराती में कहावत है, this type of patola variety has good durability and its original color remain intact. There is a saying in the same reference, पड़ी पटोले भात फाटे पण फिटे नहीं. उस साड़ी को इस तरह बनाया जाता था, उसका कलर इतना मजबूत है, भले साड़ी टूट जाएगा, फट जाएगा, लेकिन कलर कभी भी नहीं छूटेगा. ये गारंटी देता है पटोला. राइट. नेक्स्ट कम आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी. The work of embroidery can be seen on the clothes of the idol and statues were found during the excavation of Harappa and Mohenjo-daro. जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ उसके बाद हरप्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथाल, ये सब में से हम लोग को बहुत सारे आइडल और स्टेच्यूज मिला. दोज आइडल एंड स्टेच्यूज वर अफिक्स्ड विथ एम्ब्रॉयडरी वर्क. अगर कोई पेंटिंग किया जाता है या आइडल बनाया जाता, पत्थर का हो या ब्रोंज का हो या आयरन का हो या कपर का हो, जब वहाँ पर ड्रेस मटेरियल के बारे में कहा गया, पेंटिंग के ऊपर, मूर्ति के ऊपर या स्टेच्यूज के ऊपर, तो डेफिनेटली एंड सर्टनली वी विल इमेजिन दैट दोज पीपल वेर वेल अवेयर ऑफ दिस टैक्टिस. जब एम्ब्रॉयडरी वर्क स्टेच्यू में देखने को मिलता तो हकीकत में प्रैक्टिकल लाइफ में दे माइट हैव यूज्ड इट. ये प्रूफ किया जाता है. इट इज बिलीव्ड दैट the people of Harappa and Mohenjo-daro, they have known embroidery works, and this art of embroidery was seen on the clothes of men, women and children in Sindh, Saurashtra, Kutch region at the time of Indus Valley civilization. Similarly, Kashmiri kasab work of Kashmir is also well known. Apart from embroidery, बांधनी of जामनगर, जैतपुर, भूज, मंडवी, हम लोग बांधनी साड़ी राजस्थान का, जयपुर का बांधनी साड़ी के बारे में पढ़े, लेकिन बांधनी इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन गुजरात इटसेल्फ. कहाँ कहाँ पर है गुजरात में? जामनगर, जैतपुर, भूज, मांडवी इन गुजरात बांधनी साड़ी इज प्रिपेयर्ड. राइट. सो दिस इज अबाउट द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ बांधनी विथ ऑल इट्स ल्यूस्टर एंड ड्यू टू द ब्यूटीफुल डिजाइन ऑफ एलिफेंट, पपेट, डाइस. साड़ी का जो बॉर्डर होता है, हमारा घर में जो एजड औरत लोग पहनते, साड़ी पहनते, साड़ी का बॉर्डर होता है. साड़ी का बॉर्डर में पिचर, पिकॉक, पैरट, पिजन, ये सब का पिक्चर हमको देखने को मिलेगा. बराबर. उस टाइम पे. सो दीज आर कंसिडर्ड टू बी द गुड ओमेन. ये शुभ लक्षण, शुभ संकेत, जिसके लिए ये सब पिक्चराइजेशन किया जाता था. राइट. एंड the traditional art of embroidery, toran, chakda, pillow cover, bed sheet, sak, todalia, cloth like kedia is well known even today. ये सब जो रीजनल लेवल में
हर गुजराती फैमिली में ये सब चीज़ हमको देखने को मिलता, बिकॉज वी आर स्टूडेंट फ्रॉम गुजरात। सो हमारा जो रीजनल प्रोडक्ट्स और आर्टिकल्स, होममेड अप्लायंसेस, हैंडीक्राफ्ट वर्क को हम लोग definitely we should have to use it and remember it, and we will give importance in our daily life in those things. That's why it was affixed with our syllabus कि हमारा जो क्या क्या हमारा घर में, गुजराती परिवार में, गुजरात में, ग्रामीण इलाका में बहुत सारे जगह पर इसका यूज किया जाता है, राइट। सो एम्ब्रॉयडरी वर्क के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट कम लेदर। India is a land of variety of animals. We can find in India a large scale and large number of variety of animals we will find in India. So leather industry is, and the tanning of leather is very old tradition of India. Okay, so we will read now leather industry. The leather industry in India was very much developed. Masak, आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मशक। मशक इज ए बैग मेड ऑफ लेदर। इट वॉज यूज टू कैरी वाटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हंटिंग एंड फार्मिंग एक्टिविटीज़। पहले पुराना ज़माने में जब आदि मानव था, जानवर को मारने के बाद वो लोग चमड़े को निकाल देते थे। वो चमड़ा को, मांस जो होगा उसको एकदम क्लीन कर देंगे। क्लीन करके वो लोग क्या करेंगे, उसको खींच कर ऐसे फिक्स कर देंगे ज़मीन पर, सनलाइट में सुखाएंगे। 1 महीना तक constantly it will be affixed with the ground and will on open ground, और उसको 1-1.5 महीना तक सुखाएंगे सनलाइट में। सूख जाने के बाद उसको क्या करेंगे, चाकू में फिर क्लीन करेंगे। उसके बाद उसको आग में सेकेंगे। आग में सेकने के बाद वो पत्थर जैसा हो जाएगा। बाद में आप 1 महीना तक पानी में उसको डुबा के रखो, कुछ नहीं होगा वो। और उसको बाद में वो लोग क्या करेंगे, दे विल यूज एज कंटेनर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल के हिसाब से वो लोग यूज करेंगे। और बेसिकली दे वर यूजिंग इट एज मशक यानी बैग, जो कि हंटिंग और फार्मिंग एक्टिविटी, खेती को जाने के टाइम पे वो लोग क्या करेंगे, इसमें पानी लेकर जाएंगे, बराबर, मशक में। सो मशक इज ए बैग मेड ऑफ लेदर। इट इज यूज टू कैरी वाटर इन टाइम्स ऑफ हंटिंग एंड फार्मिंग एक्टिविटीज। लेदर वॉज प्रोमिनेंटली यूज फॉर मेकिंग मशक। मशक में, सॉरी, लेदर में क्या क्या चीज होता है, कोस, ड्रम, ढोलक, तबला, बिलोस यूज्ड, ब्लैकस्मिथ एंड वेरियस टाइप ऑफ फुटवेयर, लेदर, बेल्ट, सूटकेस, टाइज फॉर एनिमल्स एंड अदर यूजेस वर मोजड़ी, लेदर निटेड पर्सेस, बेल्ट, साज, पालन, लगाम। साज ऊंट का होता है, लगाम और साज और पालन होता है ऊंट का, और लगाम होता है घोड़ा का। तो ये सब जानवरों को हम अपने कंट्रोल में रखने के लिए, चमड़ा बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए चमड़े का आर्टिकल्स हम बनाते थे इनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो आसान से टूटने वाला नहीं है, राइट। सो इन दिस वे द यूज ऑफ लेदर वाज हाईली यूज्ड इन आवर कंट्री ड्यूरिंग दोस टाइम। चमड़े का व्यवहार पूरा भारत में अभी भी चल रहा है। चमड़ा ऐसे कि बहुत उसका प्राइस भी बहुत होता है, जो कि फॉरेन कंट्री को उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री हैड ए प्रोमिनेंट प्लेस इन इंडिया। वेल निटेड मोजड़ी ऑफ राजस्थान, शू, लेदर निटेड पर्सेस, बेल्ट एंड अदर थिंग्स मेड आउट ऑफ लेदर फॉर हॉर्स एंड कैमल लाइक साज एंड पालन, बराबर। ऊंट, गधा, घोड़ा, ये सब विभिन्न प्रकार का जो फार्म एनिमल्स होते हैं, द एनिमल्स, बीस्ट ऑफ बर्डन, इन लोगों के लिए चमड़े का आर्टिकल्स यूज किया जाता था। नेक्स्ट कम डायमंड बीड वर्क एंड एनामल वर्क। देखो, डायमंड बीड वर्क एंड एनामल वर्क, ये क्या होता है, इंडिया इज ऑफ हैविंग ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। ओके, इंडिया इज ऑफ हैविंग ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। अगर हम ऐसे देखेंगे, बराबर, 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन इंडिया का, ठीक है। हमारा जो कोस्ट लाइन है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम कोलकाता टू कच्छ। वेस्ट बंगाल का कोलकाता से लेकर गुजरात का कच्छ, गांधीधाम तक इंडियन कोस्ट लाइन है। इसका जो लंबाई है 5500 किलोमीटर,
बाकी अदर जो है कोस्ट लाइन इट इज टेकन फ्रॉम द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड वेयर देर इज ह्यूमन हैबिटेशन, जहाँ पर आदमी रहता है वो आइलैंड का जो चारों तरफ का जगह होता है उसको कोस्ट लाइन के हिसाब से समझा जाता है, राइट। तो ड्यू टू ए लॉन्ग एंड वास्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, इंडियन पीपल आर वेल वर्स्ड in collecting diamonds, rubies, emerald, topaz, pearls, gemstones from the ocean bed. And these people, they have their good trade and commercial relationship with foreign countries, with European countries, right? The most probably the kings and emperors to adorn their thrones, to adorn and decorate their dress materials. They were using these costly and precious stones, gemstones, diamond, topaz, राइट। ये सब अपना जो राज परिवार हुआ करते थे, ये लोग अपना ड्रेस मटेरियल्स, अपना थ्रोन, अपना ऑफिस को डेकोरेम करने के लिए दे वर यूजिंग दिस। सो इट वाज वेल डेवलप्ड इन इंडिया। द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड एंड द मुगल डायमंड इट वाज आल्सो फाउंड इन इंडिया। कोहिनूर डायमंड जो है हमारा कर्नाटक का एक कोयले का खदान से निकला था, बराबर। ये विक्रमादित्य के कोर्ट में था, उससे मुसलमानों के पास आ गया, मुग़लों के पास, और वो मुग़ल से ईरान का राजा, ईरान का जो एम्परर था वो ले गया ईरान को, बराबर। नादिर शाह, पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड, बोथ दीज आर दीज टू आर्टिकल्स आर, ये दोनों आर्टिकल दुनिया का सबसे कॉस्टली माना जाता है। उससे कोई कॉस्टली आर्टिकल दुनिया में है ही नहीं। क्या? कोहिनूर डायमंड एंड पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन जो है 400 किलोग्राम, 8 फीट बाई 6 फीट, 400 किलोग्राम गोल्ड उसमें यूज किया गया था। एम्परर शाहजहां वाज सिटिंग अपॉन इट। और मोर का जो दोनों आँख है, दोनों आँख में, एक आँख में कोहिनूर डायमंड, दूसरी आँख में मुगल डायमंड, इट वाज फिक्स्ड। और ये कंप्लीट चीज़ को नादिर शाह ऑफ ईरान टुक अवे इट, और उससे ब्रिटिश ले लिया। नाउ दिस कोहिनूर डायमंड एंड पीकॉक थ्रोन इज इन द नेशनल म्यूजियम ऑफ लंदन इन इंग्लैंड। हमारे राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप के पीरियड में सिग्नेचर कैंपेन हुआ था, उसको हम लोग रिक्वेस्ट किया था कि हमारा विरासत है, इट इज़ आवर हेरिटेज, सो प्लीज़ हैंड ओवर इट टू इंडिया, लेकिन इन लोगों ने मना किया। प्रेजेंट कंडीशन आल्सो मोदी गवर्नमेंट आल्सो इज ट्राइंग टू ब्रिंग इट, बट दे आर नॉट एग्री टू रिटर्न बैक इट, बराबर। सो ये हमारा, इट इज़ द प्राउडनेस ऑफ इंडिया, बराबर, कि दुनिया का जो देश को सबसे नेग्लेक्टेड किया जाता था ब्रिटिश शासन के दौरान, कभी ऐसा समय था वो देश पूरा वर्ल्ड में सबसे अमीर देश था। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था, बराबर। यू आर बेगर्स यूरोपियंस, तुमको कुछ नहीं मिलता था, सो यू आर यूज टू कम इंडिया फॉर प्लंडरिंग, फॉर चीटिंग। लेकिन ये हमारा बेवकूफ़पन है कि हम इतना बेवकूफ़ बन गए कि सो इन्फीरियर पीपुल दे केम एंड रूल्ड ओवर अस। The Muslims ruled over India for 960 years and the Europeans or the British government ruled over India for 190 years. ये हमारा मिसफॉर्च्यून है that we have been ruled by एक बहुत बड़ा ह्यूमन सिविलाइजेशन जो हुआ करता था, बराबर। तो somehow it was a slave, it has to spend the life of slavery under the Islamic rule and British rule. ये हमारा मिसफॉर्च्यून है। Diamond, rubies, bead, emerald, topaz were used to adorn, beautify the throne and crown and jewelry like bracelet and garland, etc. of kings. Beadwork is also found prominent in Gujarat. Beautiful bead, toran, pachit, pots, bari. These are traditional names of Gujarat. ये सब आर्टिकल्स आप सब बुक में लिखा हुआ, आप जब देखोगे, पढ़ोगे, ये सब जो आर्टिकल है, इट वाज ऑल दीज आर प्रिपेयर्ड in India. Okay, India has been a leading country in jewelry since time immemorial. ज्वेलरी, अलंकार बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए भारत का पूरा विश्व प्रसिद्ध था। इंडिया वाज सो फेमस इन द वर्ल्ड इन मेकिंग ज्वेलरी और इन ज्वेलरी वर्क्स। ओके, सो enamel work means the artistic skill of inlaying the bright color like red, green, blue in gold, silver ornament like rings, Bengal, earring, key, chains, etc. Expert enamel work especially in Jaipur, Delhi, Lucknow, Varanasi and
हैदराबाद। ओके, इनलेइंग वर्क वाराणसी, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, ये चारों सिटी में इनले वर्क होता था, जो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर स्ट्रिप्स, ग्रीन कलर, पिंक कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कलर का गोल्ड, अभी मदर्स जो मम्मी लोग पहनते हैं, सोने का चूड़ी पहनते हैं हाथ में, उसके ऊपर पिंक कलर का स्ट्रिप होगा, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का, वो जो वर्क है उसको बोलते हैं इनलेइंग वर्क। एंड इट वाज मोस्ट फेमस इन जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद एंड वाराणसी। अभी देखेंगे जरी वर्क। जरी वर्क क्या होता है? चमकीला, आप देखोगे कितने साड़ी जो होता है वो चमकीला कलर होता है, उसके ऊपर लाइट या सनलाइट पड़ेगा तो चमकेगा। तो द जरी वर्क इज ओनली फाउंड इन सूरत, राइट? सूरत इज फेमस फॉर जरी वर्क। नेक्स्ट कम मेटल वर्क। मेटल वर्क क्या होता है? मेन अभी हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डिफरेंट एजेस। स्टोन एज, बराबर, स्टोन एज के बाद आ गया मेटल एज। मैन वाज स्ट्रगलिंग विद द नेचर and man was gaining knowledge one after other, one after the another, one after the another. First of all, it has been imagined that man might have find out copper, because in very low temperature copper could be melt. copper बहुत कम टेम्परेचर में मेल्ट हो सकता है, इसलिए copper might have been first of all found by man in the forest. जंगल में आग लगता था या तो वल्कानिक इरप्शन होता था, बराबर, तब वो मेल्ट होकर पानी जैसे बहता था, जब वो कूल हो जाता था, ठंडा हो जाता था, तब वो स्ट्रांग हो जाता था। शायद इसी तरह जो जंगल में आदमी रहते थे, ये इमेजिन किया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैन माइट हैव फाउंड आउट कॉपर, बराबर। सो देयर वाज आयरन एज, कॉपर एज, ब्रोंज एज, बराबर। देखो, मेटल एज बिगन एंड डेवलप्ड आफ्टर स्टोन एज। आर्टिसंस ऑफ लोथाल मेड डिफरेंट वेपन लाइक सिकल, ड्रिल एंड निडिल। हमारा लोथाल जो है गुजरात में, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि भूकंप की वजह से ज़मीन के अंदर से जो दब गया था जो मानव सभ्यता, वो उसका रिमनेंट्स ऊपर आया। सब ऊपर आने के बाद हमको पता चला उसमें विभिन्न प्रकार का आर्टिकल्स, होम अप्लायंसेस, दोज केम फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसके वजह से हमको ये पता चला कि ये लोग सिकल, निडिल, ड्रिल, बराबर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, किचन इम्प्लीमेंट्स, many things were discovered from the Lothal and Dholavira. Okay, so moreover they prepared utensil, idol and pot. Arms and ammunition for war were made up of metal. Gold and silver used as ornament. कॉपर, ब्रास, ब्रोंज वेयर यूज्ड यूटेंसिल, यानी बर्तन वगैरह बनाने के लिए कॉपर, ब्रोंज, ब्रास। ब्रोंज यानी कांसा, ब्रास यानी पीतल, कॉपर यानी तांबा, ये सब वस्तु को बर्तन वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। गोल्ड और सिल्वर को अलंकार यानी ज्वेलरी बनाया जाता था। आयरन और स्टील, इसमें से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, किचन इम्प्लीमेंट एंड वार मटेरियल्स वर प्रिपेयर्ड। Next come wooden art. Man, tree and forest are closely associated with each other. Initially wood was used as a firewood. पहले आदमी जंगल में जब रहता था, बराबर, तो man was using wood. आग का व्यवहार पता होने के बाद आदमी को आदमी अपने पास जिंदा रखा, बराबर। आग उसको किस तरह मिला? नेचर से मिला। सपोज बिजली मार रहा है, आग लग गया, वो आग को आदमी देखा कि अगर आग लग गया कहाँ पर, वहाँ पर जानवर मर गए, तो जो मरा हुआ जानवर है वो लोग उसका जो मांस खाता था आदमी, उसको कुछ समथिंग इट फील्ड डिफरेंट एंड टेस्टी एंड स्मूथ एंड इजी। इसलिए इन लोगों ने आग का यूटिलिटी को समझा आदमी, बराबर। आग का यूटिलिटी को समझने के बाद मैन कुड हैव अचीव्ड ग्रेटर अचीवमेंट। Man had taken advantage and greater achievement after invention and finding out or discovering fire, बराबर। फायर का उसने जब खोज निकाला, उससे उसको बहुत सारे फायदा मिला, राइट। तो ये जो
वुड है। पहले आदमी वुड का व्यवहार सीखा, वुड में से विभिन्न प्रकार का आर्टिकल्स बनाया, मकान बनाया। मैनी बेनिफिट मैन कलेक्टेड बाय यूजिंग वुड। इन दिस वे वुड कार्विंग was developed. Wooden furniture like swings, toys, idar and sankheda in Gujarat are well known. Next come inlay work. Inlay work is considered to be very ancient art of India. Indian kings, emperors, ruler and royal people of that time used to wear ornament, necklace, bracelet, crown, ring, nose ring, damani were studded with precious gems like diamond, pearls, rubies. ये सब जो राजा महाराजा लोग, अरिस्टोक्रेटिक पीपल, दे वर लिविंग इन इंडिया और लिविंग, दे वर यूजिंग ornaments. बराबर. Next come ekic work. Ekic is a kind of precious stone especially found in valley areas of the river. It is chiefly chalcedonic mixed with silica, blue और white color. ekic work क्या है? गुजरात का जो कच्छ है वहाँ पर एक वैली रीजन्स में हमको एक स्टोन होता है. इट इज ऑफ रेड कलर, ब्लू कलर एंड वाइट कलर. इसमें से रॉ मटेरियल लाया जाता, सूरत में उसका प्रोसेसिंग होता. सूरत के बाद सूरत का व्यापारी उसको खरीद के खंबत बेचते, खंबत में उसका प्रोसेसिंग होता एंड गार्लैंड्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस एकिक स्टोन्स. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे we have discussed up to ekic work and the next second part of this lesson we will discuss tomorrow. Good night. बंद कर दो.